सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। हे प्राणनाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक लड़ीवार प्रसंग आप सरवण कर रहे हो। सत्संगत दे विच आके असीं मत्था टेकदे हां। एक बंदा 10 वारी मत्था टेकदा है। क्या गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज साडा मत्था टेकना प्रवान करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि जे प्रवान नहीं किया है तो फिर उसका लाभ नहीं है। प्रवान क्यों नहीं किया है तो महाराज ने बहुत सारे कारण दसे हैं क्यों नहीं तेरा मत्था प्रवान किया है। फिर महाराज ने तरीका दसिया है। डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ। डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ। अनेकां वारी उस सर्व कला समरथ दे अगे मत्था टेकना है, पर किवें? डंडे दी तरह सिद्धा हो के। पर असी सिद्धां तक ही होना है। महाराज कहंदे ने ते इस तरह मत्था टेकदे हन कि अपराधी दूना निवे ज्यों हंता मृगा है। सीस निवाइए क्या थिए जा हृदय कुसुदे जाए। मत्था टेकण दा तेरा की लाभ है? तू मत्था टेकदा पिया शिकारियां दी तरह शिकार करना है। अरदासां करदे हां गुरु दे अगे, बहुत सारिया पंक्तियां पढ़ते हाँ। जदों गुरुद्वारे तो बाहर निकलते हाँ सब कुछ भुल जाते हाँ। सब फिर इत्ते मत्था टेकदा है, फिर उत्थे मत्था टेकदा है, इस द्वार ते उस द्वार ते उहदे अगे झुकदा है, उहदे अगे झुकदा है। पता नहीं कित्थे कित्थे जाके फिर अपना नक रगड़दा है। फिर नक रगड़ते ने। द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोले। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। महापुरुष क्या करते सन? जिस दी गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो पूरी नहीं पई है ना, उहदी जगत दे विच किसे होर दर तो पूरी पै भी नहीं सकती है।
ਜਿਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕੀ ਸੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਸੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਮੰਗਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਵੀਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਫਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਵੀਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਫਾ, ਉਹ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਵੀਤਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਤ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਤਾਏ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਨੇ, ਫੁੱਫੜ ਨੇ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੜੋਸੀ ਤੇ ਪਾਈਏ। ਜੋ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕੁਸੁੱਦੇ ਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆਂ। ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਪਾਖੰਡ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਧਰਮ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡ। ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਪਾਖੰਡ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਦੋ ਹਿੱਸੇ। ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਸਰੀਰ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਰਤ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, तो गुरबाणी ने आख्या भावें कोई कीर्तन करन वाले क्यों ना होवे, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर पीजे राम राजे। कोई गावे, महाराज कहते ने कोई भी गावे, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर पीजे राम राजे। कोई बड़े सुंदर ढंग दे नाल कीर्तन करे, बड़े राग अलाप के वधिया सुरां ला के वधिया धुन बना के सोहना तबला वजदा होवे, बड़े सोहने उन्होंने कपड़े पाए होण, दस्तारां बनिया होण, शक्ल भी ऐसी बनाई होवे जिवें कोई बड़ा गुरमुख बंदा हुंदा वे। नहीं हर हर पीजे राम राजे। महाराज कहंदे ने परमात्मा प्रसन्न नहीं हुंदा है। ते गुरु नानक साहब ते कहंदे ने कलयुग में कीर्तन प्रधाना, परमात्मा दी प्राप्ति दा प्रधान जो साधन है ना, वो कीर्तन है। ते महाराज कहंदे ने कीर्तन ही भावें कोई कितने ही सोहने ढंग नाल करे, नहीं हर हर पीजे राम राजे। परमात्मा खुश नहीं होंदा, परमात्मा नहीं पसीजदा है। कीर्तन कोई करदा पियावे, बड़े सोहने कपड़े पाए ने, सोहणियां धुनां बनाईयां ने, सोहणे वाजे रखे हुए ने, लेकिन परमात्मा प्रसन्न नहीं होंदा है। क्यों नहीं होंदा? क्योंकि कीर्तन करदा पिया लोकां नूं प्रभावित करन वास्ते, परमात्मा नूं प्रभावित करन वास्ते नहीं। कीर्तन करदा पिया लोग खुश हो जान, प्रबंधक खुश हो जान। ऐतकी अगर 31,000 बेटा देती है तो अगली बारी 41,000 दे देन। लोकां नूं खुश करना है। हुण ते मैं अर्ज करदा कि कीर्तन भी वो कीर्तन नहीं रह गया जो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आरंभ कीता सी। जो पुरातन रागी साडे गाउंदे सन, वो कीर्तन नहीं रह गया है। हुण तां साडा कीर्तन भी है सारा म्यूजिकल हो गया वे। पता नहीं किहड़े किहड़े विच साज वजाण लग पए ने, पता नहीं किहड़े किहड़े डमरू वजदे पे ने, टल्लियां खड़कदियां पईयां ने, ढड्ड विच वजदे पे ने, होर पता नहीं कितने तरह के जो डिस्को साज ने जिहड़े फिल्मी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सब कीर्तन दे विच शामिल कर दिते ने। सारी किस वास्ते? लोग प्रभावित हो जान, बस होर कुछ नहीं है। इन्हां साजां दा की काम है? गुरु नानक सच्चे पातशाह ने तो केवल रबाब दे नाल कीर्तन कीता है, उन्होंने तबले वाला भी नाल नहीं रखिया।
कोई ढोलकी वाला, कोई तबले वाला, क्या उस वक्त नहीं सन साज? पर महाराज ने नहीं रखिया, क्योंकि मूल कीर्तन है, साज नहीं हैं। अज कीर्तन एक पासे हो गया, साज हावी हो गए ने उत्ते। पता नहीं किहड़े किहड़े साज पे वजदे ने। मैं कई रागियां नूं देखदा ना, जिन्हां दियां कैसटां आउंदियां ने टीवी ते चलदियां ने, जिन्हां दियां उत्थे कई कई तरह के साज वजा के एक एक ट्रैक नूं कई कई बार गा के उसनूं कंप्लीट किया जाता है। फिर जिवें एक फिल्म इंडस्ट्रीज़ वाले एक गाना तैयार करते ना, इस तरह वो एक शब्द तैयार कर देंगे। लोग सुन के बड़े प्रभावित होते हैं, कमाल कर दी है। ये नहीं पता भी एक एक पंक्ति 10 वारी 15 वारी गाई है तां कंप्लीट हुई है। ਉਹੀ रागी जदों स्टेज के उत्ते लाइव परफॉर्मेंस दिंदा है ना, फिर पता लगता है भी इहदे अंदर कितने गुण ने। उस वेले पता लगता है। फिर कुछ तो अपनी बेसुरी आवाज़ नूं दबाण वास्ते भी साजां नूं हावी कर दिंदे ने उत्ते, साजां दे विच अपनी आवाज़ दब जावे, मेहनत नहीं करते हैं। श्री गुरु रामदास महाराज के दरबार विच अमृतसर साहिब के जिहड़े कीर्तनीय ने ना, वो जदों कीर्तन करते ना, सुते सिद्ध ही उत्थे मन जुड़दा आवे। क्यों? क्योंकि वो कीर्तन की शैली है, वो ओरिजिनल शैली। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जिहड़ा कीर्तन कीता सी, कितने शांतमई ढंग दे नाल राग विच मेहनत करके फिर कीर्तन करते हैं। बड़ा आनंद आता है, हर बंदा पसंद करता है उन्होंने, हर बंदा जुड़ता है। बाकी तो मेहनत करनी नहीं है, साजां नूं विच हावी कर दिंदे ने। मैं सोचदा साडी कौम नूं एक टीम बनानी चाहिए है, जिहड़ा ये डिसाइड करन कि किहड़े साज कीर्तन विच शामिल हो सकते हैं। इन्हां दे उत्ते अगर पाबंदी ना लाई गई तो आने वाला जिहड़ा समा है ना, फिर पता नहीं उस विच की कुछ होने वाला है, पता नहीं की कुछ। इहदे उत्ते पाबंदी लानी चाहिए है। वाजा, तबला या कोई एक तंती साज, इस तो अलावा कोई साज जो है वो कीर्तन में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि साडा मूल मकसद शब्द है, साज नहीं हैं साडे। साज तो एक केवल साधन है भी सुर ताल दे विच उहनूं गाया जा सके। सारा ध्यान साडा इस साजां विच आउंदा। लोकी कह भी दिंदे ने कमाल दे साज वजाए ने, कमाल दा तबला वजाया, कमाल दा वाजा वजाया। उस शब्द किहड़ा गाया होवे वो तो देख तूं, शब्द किहड़ा गाया, शब्द ने की आख्या, की उपदेश दिता है, कोई विचार नहीं करता है, कोई भी नहीं। शायद इसे वास्ते महाराज उस वक्त कह गए ने 400 साल पहले, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पांत कर, नहीं हर हर पीजे राम राजे। कीर्तनिया कीर्तन करदा है, भावें कितने रागां विच करे, किसे तरह भी करे, लोकां नूं प्रभावित करे, रब प्रभावित नहीं होंदा है, लोग प्रभावित हो सकते हैं। और अज बहुते लोगों नूं ही प्रभावित करने वास्ते कीर्तन किया जाता है, रब वास्ते नहीं है। मस्कीन जी क्या करते सन कि जब कोई कीर्ति करे ना, परमात्मा की कीर्ति करे, तो किरत उसकी अपने आप ही हो जाती है। फिर उसकी कीर्ति ही किरत बन जाती है, किसी चीज़ की फिर कमी नहीं रह जाती है। पर जे किधरे रब नूं खुश करने वास्ते कीर्तन किया जाए तो रब नूं, और ऐसे बहुत थोड़े ने, कोई ज़्यादा नहीं हैं। मेरे दादा जी भी बहुत अच्छा कीर्तन करते सन, बाबा निहाल सिंह जी, पर वो अपनी धुन विच अपनी मस्ती च कीर्तन करते सन।
ਵਾਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਵਾਜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਚਮਕੀਲੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਵਾਜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਧੁਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? तो महाराज कहते ने जिन्ना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। जिदे अंदर ते भरिया होया कपट ते करदा पिया कीर्तन, ते कपट की है? लोकां नूं प्रभावित करना वे, प्रधान कमेटी नूं प्रभावित करना वे, रब नूं नहीं, लोकां नूं प्रभावित करना भी। खुश हो जान, चलो मेरी टोकरी भर जाए, पेटा वध जावे, 2 प्रोग्राम होर मिल जान। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। जे किधरे कीर्तन असी उस परमात्मा की कीर्ति करके करिए जां सुनिए तो दुख पाप का नाश हो जाता है। पर कीर्तन भी करते पे हैं तो रोने भी चलते पे ने। जिन्ना अंतर कपट बेकार है तिना रोए क्या कीजिए। महाराज कहते ने जिदे अंदर कपट है, करदा पिया कीर्तन, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਰੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ? भगत कबीर साहब जी का एक श्लोक है, कबीर औरन को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया कर का खेत। औरन को उपदेश ते दूजियां नूं उपदेश करने, मुख में पर है रेत, ते इस तरह है जिवें मूँह दे विच रेत पैंदी होवे। रास बिरानी राखते खाया कर का खेत, दूजियां नूं कह रहे ने कि अपनी खेत दी रखवाली करो, अपने खेत दी रखवाली करो। अपना खेत उजड़दा पिया, उहदी कोई परवाही कोई नहीं है। दूसरिਆਂ नूं कह रहे ने सवेरे अमृत वेले उठो, नितनेम करो, बाणी पढ़ो, ते आप सवेरे 7 वजे तो पहले उठदे ही नहीं ने। दूजियां नूं कह रहे हैं औरन को उपदेश ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ते स्पष्ट कह दिता भी अवर उपदेशे आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। दूजियां नूं उपदेश देंदे पे ने, आप करदे नहीं हन। महाराज कहंदे ने जम्मणगे मरणगे, फिर जम्मणगे फिर मरणगे। दूसरिਆਂ ਨੂੰ उपदेश देना है। कथावाचक होवे ते आप नितनेम ही ना करे, आप सवेरे अमृत वेले उठे ही ना, अपना कोई अभ्यास ही ना होवे। लोकां नूं कह रहे ने इस तरह सिमरन करो, समाधि लाओ, इत्थे ध्यान जोड़ो, वाहे कहो ते श्वास अंदर जाना चाहिए, गुरु कहो ते श्वास बाहर आना चाहिए वे, इंज ध्यान जोड़ना है, इंज करना है, इंज करना है। आप कुछ भी नहीं करते हैं। बस इकबाल इस नूं बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। गुफ्तार दा गाजी स्टेज दा ते बड़ा धनी बन गया, गल्लां बड़ियां सोहणियां करदा वे, लेकिन किरदार का गाजी बन ना सका। पर अपना इसका किरदार कुछ भी नहीं है। लोकां नूं उपदेश देना है, बस तुसी करो।
महाराज ने किसी नूं भी नहीं छोड़िया है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਚਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। महाराज ने सेवादारों को भी नहीं बख्शिया है। जो गुरुद्वारे सेवा करते ना सेवादार ने, उन्होंने भी महाराज ने नहीं बख्शिया है। क्योंकि सतगुर कहते ने कोट मधे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी। करोड़ां दे विच कोई एक सेवादार है, बाकी सब व्यवहारी ने। व्यवहार हुंदा है वणज वपार करना। व्यापारी ने मैं ये सेवा की बदले विच ऐ मिल जावे, मैं इतने पाठ किए बदले विच ऐ मिल जावे। असी जो सेवा कर रहे हैं उहदी सानू तनख्वाह मिलती है, भावें वो ग्रंथी है या रागी है, कथावाचक है, सेवादार है, कोई भी है। जो असी गुरुद्वारे ड्यूटी करते हैं उहदी सानू तनख्वाह मिलती है। अपने वास्ते असी की कीता वे? कदी एक जपजी साहब का पाठ भी अपने वास्ते कीता वे? नहीं। वो तो ड्यूटी है साड़ी, वो तो किरत है। पर जे उस किरत नूं भी कोई ईमानदारी नाल करे ना, तो गुरु नानक सच्चे पातशाह उस दे उत्ते भी प्रसन्न हो सकते हैं। पर असी नहीं करते हाँ इस तरह। असी करते ही नहीं हाँ। जिहड़े संगत विच आके बैठते ना, महाराज ने उन्होंने भी नहीं छोड़िया है। सतगुरु कहते ने एक अपने स्वाए आए बहे गुर आगे, ज्यों बगल समाध लगाइए बगला काग नीच की संगत जाए कुरंग बिखों मुखलाइए। महाराज कहते ने जेड़ा सामने आके बैठा ना समाधि ला के, संगत विच बहिंदे ना कई, महाराज कहते ने इहदी समाधि बगले वाली समाधि है, होर कुछ नहीं है। अंदर इहदे कुछ होर चलदा पिया वे। जिन मन होर मुख होर, ये बगले की समाधि है। जदों इसका दाव लग गया ना तो इन्हें मच्छी खा लैनी है। फिर जदों दाव लग गया, वो कोई भी है, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी किसी नूं नहीं बख्शते हैं। महाराज कहते ने अरदास करनी चाहिए है कि नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराइए। अरदास करो कि सच्चे पातशाह मैनू तेरी संगत मिल जाए, मेरा मन तेरे चरणों विच जुड़ जाए, तो मैं भी तेरी तरह हंस बन जावां। तेरी संगत करके मैं भी हंस बन जावां। पर असी केवल दूसरिਆਂ ਨੂੰ उपदेश देण वास्ते बस, और कुछ नहीं है। कई प्रबंधक भी मैं देखदा हाँ जी, असी तो सेवादार हाँ जी। तो सेवादार हो तो एक दिन जे कुर्सी खो लवो ना, तो फिर वेखो भी सेवा कित्थे जांदी है उन्हां दी। फिर तो गुरुद्वारे आना ही बंद कर देंदे हन, फिर नहीं आंदे हन। प्रधान पता ही कौन हुंदा वे? मेरे एक मित्र ने देहरादून वाले ज्ञानी बलविंदर सिंह जी देहरादून वाले, उन्होंने प्रधान दे अर्थ बड़े वधिया कीते हन। प्रधान पराया धान खाण वाला प्रधान, अखवांदे ते अपने आप नूं सेवादार ने, पर हुंदे वो प्रधान ही ने। ते प्रधान असल विच पता कौन हुंदा वे? महाराज दी बाणी कहंदी है, जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान। जिहदे हिरदे दे विच पार ब्रह्म वस जांदा ना, असल दे विच ओ प्रधान हुंदा है। प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान। ते अज जिहड़े प्रधान बने बैठे ने या होर उन्हां दे नाल दे, उन्हां नूं तां पंज बाणियां दे नाम भी नहीं पता है कईयां नूं। ते मैं नहीं कहंदा, बहुत चंगे चंगे प्रबंधक भी मौजूद ने, नितनेमी ने, प्रेमी ने, मिलते ने, लेकिन गिणती बहुत घट है, बहुत घट। ते जद साडे आगू ही ठीक ना होण,
तो फिर भाई गुरदास जी कहते ने अंधा आगू जे थिए सब साथ मुवावे। जे एक अंधा आगू बन जाए ना वो सारिਆਂ ਨੂੰ रोड़ के लै जाता है सब। तो खैर इत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी किसी ਨੂੰ नहीं बख्शते हैं, भावें कोई रागी है, भावें कोई कथावाचक है, ग्रंथी है, ਜਾਂ सेवादार है, ਜਾਂ प्रबंधक है, ਜਾਂ संगत है, किसी ਨੂੰ नहीं। गिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चियां। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कुछ संगतां ने बेनती की थी। महाराज एक बंदा जदों कथा करदा है ना तो साडा बड़ा ही मन जुड़ जाता है, साडा जी करदा भी ये कथा होर करे असी होर सुनीए। पर एक बंदा कथा करदा है, कहंदे महाराज साडा जी करदा है भी इनू पकड़ के थले उतार देवीए, ये चुप कर जावे, साडा सुनन ते जी नहीं करदा। महाराज बाणी तुहाडी अपनी है, बाणी तो वही है ना, इक्को ही बाणी। एक बंदा कथा करदा है साडा सुनन नू जी करदा है, एक करदा है साडा दिल करदा है इनू चुप करा दईए। ऐसा क्यों है महाराज, ऐसा क्यों होंदा है? दरबार लगा होया सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दो सिखां नू इशारा किया, वो खड़े हो गए। ते महाराज ने जिहड़ा कोल सेवादार खड़ा सी ना उन्होंने आख्या भी एक एक कमान ते एक एक तीर इन्हां दोनों नू दे दिओ। सिख ने लिजा के दे दिते उन्हां दोनों नू, एक एक तीर ते एक एक कमान। सामने एक निशाना रख दिता। महाराज ने पहले नू आख्या भी तू निशाना ला। उन्हें बेचारे ने तीर चलाया तो तीर रस्ते च डिग पिया, तीर रस्ते च डिग पिया। दूजे नू आख्या हुण तू निशाना ला। उन्हें जब निशाना लाया तीर ऐन जाके निशाने ते लगा, बिल्कुल बिल्कुल निशाने ते लगा जाके। तो महाराज ने आख्या भी कुछ समझ आई है हुण? सिखां ने आख्या महाराज कोई समझ नहीं आई है। एक ने तीर चलाया वो तो रस्ते च डिग पिया, दूजे ने चलाया वो निशाने तक पहुँच गया। सानू तो इस विचों कुछ भी समझ नहीं आई है, कुछ भी नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने समझांदियां होया सिखां नू ये जिहड़ा पहला है ना जिन्हें तीर चलाया तो रस्ते च डिग पिया, महाराज कहते ने ये अभ्यासी बंदा नहीं है। इनू तीर दिता है, इन्हें चलाया है, रस्ते च डिग पिया, अभ्यासी नहीं है, इन्हें कोई अभ्यास नहीं किया है। जिहड़ा दूजा है ना ये रोज़ दा अभ्यासी है, रोज़ अभ्यास करदा है, इहदा तीर ऐन निशाने ते जाके लगा है। महाराज कहते ने हुण गल समझ आई है? सिखां ने आख्या महाराज थोड़ी जी होर किरपा करो तो कुछ होर समझा दिओ सानू। सतगुरु कहंदे ने एक बंदा वो जिहड़ा कथा करदा है जां कीर्तन करदा है वो आप अभ्यासी नहीं है। उन्हें कदी अभ्यास नहीं किया, कदी अमृत वेले नहीं उठ्या, नितनेम नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। महाराज कहंदे ने उहदियां गल्लां रस्ते च डिग पैंदियां ने, निशाने तक नहीं पहुँचदियां। एक वो है जिहड़ा रोज़ अभ्यास करदा है, अमृत वेले उठदा है, नितनेम करदा है, सिमरन करदा है, अपने जीवन नू जिसने साधना करके साधिया होया वे, उच्चा सुच्चा जिन्हें जीवन बनाया होया है। महाराज कहंदे ने वो जदों कथा करदा है ना उहदियां गल्लां फिर निशाने तक पहुँचदियां ने, साडे हिरदे तक पहुँच जांदियां ने, साडे हिरदे तक। जैसे एक बंदा खाली बंदूक चलावे, एक बंदा भरी हुई बंदूक चलावे, दोनों दे विच बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मैं अर्ज करा ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी जदों बोलना शुरू करते सन ना किसी की हिम्मत नहीं सी आउंदी कि उठ के चला जावे, क्यों? उन्हां दी एक एक बोल दिल ते जाके असर करते सन, सीधा हिरदे दे विच।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਸਨ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ, ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕੁਸੁੱਦੇ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਆਪਣਾ, ਪਛੇ ਅਵਰ ਰਿਝਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਬਣਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।